Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Sequence and Series. Now, we'll start with exercise 4.5, question number 10. Question is, if S1, S2 and S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, then show that 9s2 square is equal to s3 into 1 plus 8 times of s1. इसका मतलब क्या है कि if s1, s2 and s3 are the sum of first n natural numbers squares and their cubes respectively, show that nine s2 square is equal to s3 into 1 plus 8 times of s1. Yes, so यहां पे मैं लिख सकता हूं s1 is equal to s1 जो है वो sum of first and natural number है, so we can say it is n into n plus 1 upon 2 आ जाएगा. s2 जो है ये हो जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, and s3 जो है that is cube है, so ये हो जाएगा n into n plus 1 upon 2 the whole square. This is same as n square into n plus 1 the whole square divided by 4 आ जाएगा. So यहाँ पे we can write this as LHS is equal to 9s2 square. ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, s2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 the whole square. So ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n plus 1 the whole square, ये हो जाएगा 2n plus 1 the whole square divided by 36. 9 1 जा 9 4 जा, ये हो जाएगा n square into n plus 1 the whole square into 2n plus 1 the whole square divided by 4, and we can mark this as what 1. and अब मैं यहां पे लिखूंगा RHS is equal to S3 into 1 plus 8 times of S1. yes, तो S3 का वैल्यू यहां पे मैं लिख सकता हूं as what n square into n plus 1 the whole square upon 4. yes, in the bracket 1 plus ये हो जाएगा 8 times of n into n plus 1 divided by 2, ये आ जाएगा. yes, तो यहां पे मुझे इतना समझ में आ रहा है, दिस वैल्यू ये n स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये n plus 1 the whole square यहां पे भी है यहां पे भी है, ये 4 यहां पे भी है, क्या नहीं है मतलब इतना पार्ट मिसिंग है. सो वी कैन से ये हो जाएगा 1 जा एंड ये हो जाएगा 4 जा, ये हो गया मेरा 4 मतलब सॉरी 1 प्लस 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 4 n into n plus 1. yes, so based on this मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ it is n square n plus 1 the whole square upon 4, ये हो जाएगा 1 plus ये 4n into n, ये हो जाएगा 4n square plus 4n into 1, ये हो जाएगा 4n. so based on this we can say it is n square n plus 1 the whole square upon 4, ये हो जाएगा 4n square plus 4n plus 1. yes, इसको मार्क कर दिया as what 2. now यहां पे मैं लिखता हूं from 1 we have LHS का वैल्यू as
n square into n plus 1 the whole square into 2n plus 1 the whole square divided by 4. तो इसको मैं लिख सकता हूँ as what? n square into n plus 1 the whole square upon 4. यस, इतना पार्ट तो सेम आ गया. अब खाली फर्क कहां पर है, इधर ये टर्म है और यहाँ पे ये 3 टर्म है, ठीक है. सो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा. व्हाट इज a का स्क्वायर, तो 2n का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ब्रैकेट. ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 एंड विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर व्हाट 3. इधर 2 था, ये 3 है. सो यहां पे मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से LHS का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट RHS. देयरफॉर 9s2 square is equal to s3 into 1 plus 8s1. Yes, so with this we can say hence proved. So with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is question number 9. Find n if 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus dot dot up to n terms divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 up to n terms is equal to 100 upon 3. So यहाँ पे ये हो जाएगा 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus dot dot up to n terms divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot dot up to n terms is equal to 100 upon 3 है. Yes, so यहाँ पे we need to understand कि ये b plus 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 ऐसा है up to n terms. Yes, and ये 1 तो यहाँ पे 2 है, ये 2 तो यहाँ पे 3 है, ये 3 तो यहाँ पे 4 है. ये मतलब यहाँ पे जो नंबर है तो ये नंबर उससे एक ज्यादा है, ये नंबर जो है उससे एक ज्यादा, ये नंबर जो है उससे एक ज्यादा, ये नंबर जो है उससे एक ज्यादा. So we can say this is same as summation of r equal to 1 से स्टार्ट हो रहा है to n एंड ये हो जाएगा r into r plus 1. मतलब ये जो नंबर है वो नंबर प्लस 1 करेंगे तो ये सेकेंड टर्म का आंसर आएगा. अच्छा, ये जो नंबर है प्लस 1 किया तो ये नंबर आएगा. अरे मतलब ये जो नंबर है प्लस 1, ये जो नंबर है प्लस 1, तो ये देखो ये नंबर पहला, दूसरा नंबर लाने के लिए जो नंबर है प्लस 1 करो तो हमें नया नंबर मिलेगा. सो ये हो गया अपॉन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n. ये 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स है तो ये हो गया r इज इक्वल टू 100 अपॉन क्या आ जाएगा 3. सो यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन से ये हो जाएगा मेरा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r इंटू r, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r. यस, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा. समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 आ गया. यस, अभी समेशन दोनों टर्म को जाएगा तो दिस बिकम्स समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r हो जाएगा इज इक्वल टू 100 अपॉन 3. सो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस ये आंसर देगा मुझे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई ये मुझे आंसर देगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3. सो यहां से मैं लिख सकता हूं n कॉमन n प्लस 1 क्योंकि इधर भी n है इधर भी n प्लस 1 है. ठीक है, तो न्यूमरेटर पार्ट से n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा
और इधर 6 है और इधर 2 है, तो अपॉन 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2n+1 डिवाइड बाई 3 प्लस ये पूरा बाहर निकल गया, पूरा का पूरा टर्म, तो इधर 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई n इंटू n+1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100/3। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2n+1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 100/3 आ जाएगा, ये 3 और ये 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2n+4 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, सो 2n इज इक्वल टू 100 माइनस 4, ये हो जाएगा 96, 2n का वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 96/2, तो n का वैल्यू हो जाएगा 48, एंड ये क्वेश्चन में वही वैल्यू पूछा था, सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now, we'll start with the sixth question of exercise 4.5. The question is, find the sum, और दिया गया है क्वेश्चन में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। यस, सो यहाँ पे बहुत सिंपल कंडीशन है, ये है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स लिखा गया है, सो वी कैन से ये 2 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ऐसे सारे वैल्यूज आ रहे, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। यस, ये आ जाएगा, सो ये जो वैल्यू है, यस, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। सो इसका मीनिंग हो जाएगा, यस, ये r का वैल्यू 1 हो गया, 2 3 4, ये 2 का मल्टीपल है, यस, तो इन जनरल में लिख सकता हूं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो ये 2 तो आने ही वाला है, और ये 1 2 3 अरे सॉरी 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं, सो इन जनरल में लिख सकता हूं r द होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, तो इधर देखो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर वो तो फिक्स है, तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, और ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इन जनरल r स्क्वायर हो गया, और समेशन है प्लस साइन, तो इसलिए समेशन का सिंबल आया कहां से, 1 से कहां तक, अप टू n टर्म्स है, तो यहाँ पे n आ गया, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट है ये टर्म के साथ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड समेशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जैसा केस हो गया, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 3 जा, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। So with this question is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is 7th sum of exercise 4.5. Question is, find 70 square
माइनस 69 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में टर्म है 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में टर्म है 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो यहां पे इफ आई ऑब्जर्व दिस केयरफुली तो यहां पे फाइंड बोला है 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट. कहां तक जा रहा है? 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे लेट s इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर स्क्वायर यस, उसके बाद माइनस 69 स्क्वायर है, फिर है प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. यस, इसका मतलब 70 68 66 डॉट डॉट 2 स्क्वायर, मतलब ये एक ब्रैकेट में लिख दूंगा 70 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर. यस, सारे 2 डिजिट वाले मतलब मल्टीपल ऑफ 2 वाले स्क्वायर्स एक साथ लिखे. इधर आ जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस 69 माइनस 67 माइनस 65 माइनस 1, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया. ये हो जाएगा 69 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक 1 स्क्वायर. यस, तो यही चीज को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं. दिस बिकम्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 66 स्क्वायर 68 स्क्वायर 70 स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट, इसको भी अरेंज कर दूंगा. ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 65 स्क्वायर 67 स्क्वायर प्लस 69 स्क्वायर. सो इसका मीनिंग हो जाएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट कुछ तो फॉर्म हो रहा है, सेकेंड ब्रैकेट कुछ तो फॉर्म हो रहा है. सो यहां पे आई कैन से ये है 2 4 मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है. सो इन जनरल वी कैन से दिस इज प्लस प्लस करते हुए टर्म्स है, तो ये हो जाएगा मेरा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1. ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 फिर 4 मतलब 2 1s are 2 2 2s are 4, ऐसे 2 into 35 ये 70 देगा. तो ये हो जाएगा 2 into r the whole square. एंड यहां पे मैं लिख दूंगा n के जगह पे 35 आ जाएगा. अरे अब तक जो भी सम देखे थे उसमें अप टू n टर्म्स होता था, तो वहां पे हम यहाँ पे n लिखते थे. यहाँ पे 35 क्यों आया? क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है एंड 2 इंटू क्या करेंगे तो 70 आएगा 35, इसलिए r का वैल्यू 1 से लेके 35 तक, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर आएगा एंड 2 इंटू 35 तो 70 हो जाएगा तो 70 का स्क्वायर. ये आ गया. इधर आ जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 35 आ जाएगा. ये 1 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है प्लस 65 स्क्वायर 67, मतलब ये है मेरा ऑड सीरीज. मतलब ये हो जाएगा 2r अगर मेरा इवन नंबर है तो 2r माइनस 1 ये हो जाएगा मेरा ऑड नंबर एंड उसका स्क्वायर है, तो ये आ गया. सो ये आ गया 2r द होल स्क्वायर, ये आ गया 2r माइनस 1 द होल स्क्वायर. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ये हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 35. यस, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 35, ये हो जाएगा 2r माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2r इंटू 1 मतलब ये हो जाएगा 4r प्लस 1. सो फ्रॉम दिस वी कैन से समेशन ऑफ r 1 से लेके 35 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ये सीधा ब्रैकेट आ जाएगा 4
r इज इक्वल टू 1 से लेके 35 r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 35 ये हो जाएगा r प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 35 ये हो जाएगा 1. So based on this we can say ये हो जाएगा 4. ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जहां पे n का वैल्यू क्या है 35. मतलब ये हो गया मेरा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर. सो उस केस में n की जगह पे आ जाएगा 35, फिर आएगा 35 प्लस 1 एंड फिर आ जाएगा 2 इंटू 35 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6 माइनस यस ये ब्रैकेट आ जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 35 प्लस 1 2 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 35 ब्रैकेट में प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 35 इंटू 35 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस ये हो जाएगा इन जनरल टर्म्स में n आता है बट यहाँ पे n का वैल्यू 35 है. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दिस इज इनटू 35 इंटू 35 प्लस 1 ये 36 हो जाएगा इंटू ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये 70 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6. ये माइनस साइन इसके साथ जाएगा तो माइनस आ जाएगा ये 4 हो गया इंटू 35 आ गया इंटू 35 प्लस 1 ये 36 हो गया इंटू ये 70 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 6. ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस. इधर ये हो जाएगा 4 इंटू 35 इंटू 36 डिवाइड बाई 2 एंड ये माइनस साइन इसके साथ जाएगा तो ये माइनस 35 हो जाएगा. यस गलती से भूल नहीं जाना है, ये माइनस साइन इसको देना है. हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये कॉमन मिस्टेक हो सकता है. सो अभी ये हो जाएगा ये सारे टर्म्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं और यहाँ पे भी दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है ये माइनस दिख रहा है. सो सीधा का सीधा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 35 मतलब ये हो जाएगा 70 इंटू 36 माइनस ये 35 हो गया. सो यहां पे ये 0 आ गया. 42 4 कैरी 21 और 4 25 माइनस 35. अच्छा 2520 में से 35 20 गया तो 2500 और उसमें से 15 गया मतलब ये हो जाएगा 2485. So with this question is done. We make a note of this part. Now, based on this, we have one of the question of miscellaneous as homework, which is very much similar to the question which we did last, that is question number 7. Yes, उसके जैसा ही similar question है from miscellaneous exercise 4 and that is question number 16. Find bracket 50 square minus 49 square एक bracket में plus second bracket में 48 square minus 47 square plus third bracket में 46 square minus 45 square plus dot 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 last bracket में दिया है 2 square minus 1 square. yes, मतलब जो हम लोग ने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखा था उसमें 70 स्क्वायर से लेके 1 स्क्वायर तक था. तो 70 स्क्वायर के लिए हमने क्या लिखा था 35. वैसे यहां पे 50 स्क्वायर है तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 35 के जगह पे 25, क्योंकि 2 इंटू 25 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 2 है वैसा कंसिडर करके. सो वहां पे जो मेरा वैल्यू ऑफ r रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1 टू n एंड वो n का वैल्यू कितना रहेगा 25 फॉर क्वेश्चन नंबर 16.
which is very similar to what the question which we did in exercise 4.5, question number 7. So with this, we end the session over here. Please revise the concept of this session. That will help you for the next session. Thank you.